So, hi, my name is Rinju, and I'm a teacher with one of the schools. So, I teach history. So, I decided that I'll make some videos for the children who are not able to go to school at this particular point of time, which would help them to clear certain concepts about revolt of 1857. So, the chapter I've picked today is Class 8 NCRT chapter, which says the title of the chapter is When People Rebel. So, When People Rebel is also known as the revolt of 1857. So the focus point of the initial first class is why is uh, or probably the different names that are given to revolt of 1857. So if you see the different names that are given to revolt of 1857 are given by the historians. So the historians who have worked on the content of revolt of 1857 has given the revolt different names. So I'll take the three popular names that has been given to revolt of 1857 in today's class. The first name given to the revolt of 1857 is First War of Indian Independence. Second name, the second most popular name that has been given to revolt of 1857 is Sepoy Mutiny. And the third reason that has been given, or the third name that has been given to the revolt of 1857 is Peasant Rebellion. So what we'll do is we'll focus on the first one first today. That is the First War of Independence. So the historians have termed the revolt of 1857 uh, एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है. हमें देखना पड़ेगा कि बाय 1600 द ब्रिटिश केम टू इंडिया विद अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन सर्टन कमोडिटीज़ इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल स्पाइसेस के लिए आए थे, स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे. सो इट वॉज ए मर्चेंट कम्युनिटी or the merchant company which came to India, which was known as English East India Company. So English East India Company, when they came to India, they kind of got certain concessions from the Indian rulers and decided to trade in India. ट्रेड करते करते इनको लगा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग लैंड है और इस लैंड को अगर कंप्लीटली कॉन्कर कर ले या कैप्चर कर ले तो उनका जो प्रॉफिट था वो बहुत ही एक्सेस में बढ़ेगा. सो व्हाट दे हैव डन नाउ इज दे स्टार्टेड स्लोली स्लोली कॉन्करिंग द एंटायर इंडिया. So in 1857, the Indian section, so the Indian section includes a lot of communities, lot of people. So if I refer a few of them, जमींदास खुश नहीं थे, peasants खुश नहीं थे, peasants यानी कि farmers, peasants खुश नहीं थे, पंडित्स खुश खुश नहीं थे, मौलवीज खुश नहीं थे. देखा जाए तो सिपॉयज जो ब्रिटिश आर्मी में काम करती थी वो भी खुश नहीं थे. एक तरीके से लगभग लगभग पूरी इंडियन सेक्शन ऑफ पीपल वर नॉट हैप्पी विद द ब्रिटिश. So the so if you see why historians term this as first war of Indian independence is the reason because this is the first time the Indian communities, irrespective of their caste, irrespective of their religion, irrespective of their gender, they all came together to fight a common enemy, and this common enemy was nobody else other than the British. So that is the reason the historians ने इसको टर्म किया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. अब चलते हैं इसके सेकेंड नेम पे. सेकेंड नेम जो था सिपॉय म्यूटनी दिया गया. हिस्टोरियंस ने इसको सिपॉय म्यूटनी रेफर किया गया है. सबसे पहले तो समझते हैं कि सिपॉय कौन है. सिपॉय अगर देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 पे दिया गया है सिपॉयज, राइट, द पेजेंट्स एंड द सिपॉयज. सिपॉयज कोई नहीं. सिपॉयज बेसिकली जो ब्रिटिश आर्मी में जो रिक्रूटेड इंडियन सोल्जर्स थे उनको सिपॉयज बोला जाता था. थे तो वो सिपाही, लेकिन ब्रिटिश उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे सिपाही वर्ड को, और धीरे धीरे वो सिपॉय बन गया. सो दे स्टार्टेड रेफरिंग सिपाही एज सिपॉय. सो जो सेकंड नाम दिया गया है उसका उसको अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डाले तो वो बोलता है सिपॉय म्यूटनी. म्यूटनी का मतलब है रेबेलियन, यानी कि सिपॉय का मतलब है सिपाही और म्यूटनी का मतलब है रेबेलियन. सो सिपाहियों का विद्रोह था दूसरा नाम जो हिस्टोरियंस ने दिया. अब हमें समझना पड़ेगा कि सिपाहियों की कौन सी ऐसी व्यथा थी या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ ये विद्रोह किया या ब्रिटिश के अगेंस्ट व्हाई डिड दे रिवोल्ट.
right? So the first reason of sepoys getting against the British was that they were not paid equally to their European counterparts और द ब्रिटिश सोल्जर्स, यानी कि उनकी सैलरीज में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी थी. डिस्पैरिटी इन द सेंस कि सेम पोजीशन पे एक इंडियन और एक ब्रिटिश सोल्जर है, तो उसमें से इंडियन सोल्जर को कम पैसे दिए जाते थे, जबकि एक ब्रिटिश सोल्जर को उनसे काफ़ी हाई पे किया जाता था. तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी कि इंडियन सोल्जर्स के लिए कि वो सेम तरीके का काम कर रहे हैं लेकिन उनको कम पैसे दिए जाते थे एज पार्ट ऑफ देयर सैलरी. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दैट द ब्रिटिश सोल्जर्स रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड द इंडियन सोल्जर्स. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है रंग रूप भेदभाव करना. अगर देखा जाए तो ब्रिटिश एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती थी. ब्रिटिश बिलीव करती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है. दे आर वाइट्स एंड ऑल द अदर रेसेस आर इन्फीरियर टू देम. यानी कि बाकी कोई भी रंग का आदमी है वो उनसे काफ़ी नीचे है, नीचे तबके के लोगों की तरह उनको देखा जाता था और उनको काफ़ी पीड़ित किया जाता था इस इस चीज़ पर. अगर देखा जाए तो इंडियन सोल्जर्स को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी. उनको रेशियली बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उनके रंग के ऊपर. सो द ब्रिटिश सोल्जर्स ऑलवेज केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन सोल्जर्स एंड दे ट्रीटेड देम रेशियली एज इन्फीरियर, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, क्योंकि वो जिस आर्मी में इक्वालिटी देखना चाहते थे वही आर्मी जिसके लिए काम कर रहे थे वही आर्मी उनको नीचा दिखा रही थी. तीसरे रीज़न पे चलूँगा. तीसरा रीज़न कि ये सिपॉय म्यूटनी क्यों हुआ. सिपॉय म्यूटनी इसलिए हुआ, तीसरा रीज़न है कि ब्रिटिश सोल्जर्स को या ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हमेशा प्रमोशन का हकदार माना जाता था. They were always given promotion to the higher post, whereas the Indian soldiers were never considered for any superior post. So this was one of the biggest discrimination that was done by the British Army to the Indian soldiers. They were never considered for any kind of promotion. ये तीसरे रीज़न के बाद हम चलते हैं चौथे रीज़न पे. चौथा रीज़न है 1856 में. 1856 में आपका ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट केम अप विथ वन ऑफ द लॉज विच वाज नॉन एज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. देखने में तो ये नाम बहुत कठिन लगेगा लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है. द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एक्चुअली मेंट दैट any Indian soldier or any soldier who's been recruited to the British Army has to could be posted anywhere in the world. That means that कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इंडिया में ही पोस्टिंग दी जाएगी. आपको कहीं पे भी ब्रिटिश आर्मी अपने साथ ले जा सकती है और आपको ओवरसीज पोस्ट कर सकती है. जिसके अनुरूप अगर देखा जाए तो जो इंडियन सोल्जर्स थे काफ़ी नाखुश थे. उनको लगता था कि इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ एक सुपरस्टिशन या उनके कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ था कि अगर भारतीय 7 समुंदर पार कर लेते हैं, शिप्स पे ट्रैवल करके कहीं और जाते हैं, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा. उनके अंदर ये मानसिकता बड़ी तगड़ी बनी हुई थी. लेकिन ब्रिटिश को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. उन्होंने ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब इंडियन सोल्जर्स को काफ़ी जगह पोस्ट किया जाने लगा आउटसाइड इंडिया, जिसकी वजह से हिंदू सोल्जर्स काइंड ऑफ वर वेरी वेरी अनहैप्पी विद द ब्रिटिश. तो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट का सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि दे केम अप विद ए रूल दैट स्टेटेड that they will be posted, the Indian soldiers or anybody who's been recruited into the British Army could be posted anywhere in the world. आगे चलते हैं जो एक इमीडिएट कॉज है रिवोल्ट का और जिससे काफ़ी ज़्यादा खफा थे इंडियन सोल्जर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो. इसको हम कहते हैं ग्रीस्ड कैट्रिज इशू. अगर देखें ग्रीस्ड कैट्रिज इशू क्या है. ग्रीस्ड कैट्रिज इशू grease cartridge issue is been related to a rifle which is known as Enfield rifle. Enfield rifle को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश आर्मी में, और जिसके अंदर जो जो कैट्रिजेस होते थे वो ग्रीस्ड हुआ करते थे पिग और काउ फैट से. यानी कि फैट तभी निकलता है जब आप उस
पिग या काऊ को मार के उसका फैट निकालते थे और उसकी लेयरिंग की जाती थी, उसकी ग्रीसिंग करी जाती थी। और एनफील्ड राइफल के अंदर अगर आपको कारतूस से गन पाउडर भरना है, तो आपको उसको बाइट करना पड़ता था, जिसके लिए हिंदूज ने भी मना कर दिया। हिंदू सोल्जर्स हु वर इन द ब्रिटिश आर्मी रेफ्यूज, एज वेल एज द मुस्लिम soldiers also refused to use it. Now we have to see that why did they refuse to use these cartridges. इन cartridges को ना यूज़ करने का सबसे मेजर फैक्टर था, हिंदूज काउ को एज ए होली एनिमल देखते थे, और इस होली एनिमल का मतलब है कि वो वर्शिप करते थे काउ को। और उन्होंने जब देखा कि ब्रिटिश काउ को मार के उसी के फैट को एक कारतूस पे लगा रही है, कैट्रिज पे लगा रही है, उसको ग्रीसिंग कर रही है, और उसी को उनको अपने मुंह से खोलना पड़ रहा है, तो उन्होंने सीधा इस राइफल को और इस ग्रीस्ड कैट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया। अगर हम देखें मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम्स वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद द यूज़ ऑफ द कैट्रिज। कैट्रिज को ग्रीस किया जाता था पिग के फैट से भी। और अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम, द मुस्लिम्स kept always a distance with the pig. For them, it's been seen as an impure animal. और impure animal को animal का fat अगर use करके उसको bite करने के लिए, so Muslims also denied to use it. अगर देखा जाए completely, it was attacking the Hindu and Muslim religious sentiments, and hence they decided that they will not use this cartridge ever. And this is how in Behrampur in West Bengal, your Mangal Pandey has emerged as a leader who refused to use this cartridge and was later hanged by the British for attacking one of the British officials. राइट? सो अगर हम ये पूरे रीजंस मिलिट्री के ले ले या सिपाहियों के ले ले, इसी से सिपाही विद्रोह हुआ था। इसीलिए हिस्टोरियन इसको सिपॉय म्यूटनी बोलते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा नाम हिस्टोरियंस ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या दिया है। तीसरा नाम रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाहियों ने जो दिया है, हिस्टोरियंस ने जो दिया है, वो है पेजेंट रेबेलियन। पेजेंट कोई नहीं है, पेजेंट बेसिकली आपके फार्मर्स है। फार्मर्स ने रेबेल किया। अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें फार्मर्स ने क्यों रेबेल किया है। फार्मर्स वर टैक्स्ड रियली हाई। उनसे जो भी वो कृषि करते थे या जो भी वो खेती बाड़ी करते थे, उसके पे एक्सेस टैक्स लिया जाता था, एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया जाता था। और चाहे आपका सूखा पड़ जाए, फैमिन हो जाए, ड्रॉट हो जाए, फ्लड्स आ जाए, nothing gave any concession to the peasants. Peasant has to pay the taxes at any cost. If the peasant failed to pay the taxes to the British government, then his land was occupied or conquered by the British. There was one of the laws, the popular laws, which was sunset law, जो ज़मींदार के ऊपर एप्लीकेबल था। अगर ज़मींदार अपने पूरे एरिया में से टैक्सेस इकट्ठा करके सनसेट से पहले अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं सबमिट करवा पाती थी, तो उसकी भी पूरी संपत्ति या जो उसकी भी जो जितने भी लैंड्स थे, उसको हड़प लिया जाता था। सो दीज वर क्वाइट सम रीजंस why the revolt of 1857 has started. So focusing again back to the first war of independence, क्योंकि सारे इंडियंस इकट्ठा लड़े। सिपाही म्यूटनी, क्योंकि सिपाहियों के बहुत सारे इश्यूज थे। पेजेंट रेबलियन, क्योंकि पेजेंट्स के बहुत सारे इश्यूज थे। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये पेज नंबर 52 पे मिल जाएगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, द पेजेंट्स एंड सिपाहीज, राइट? एंड इट कंटिन्यूज टिल on further pages. So if you are interested in reading more about this, please read it from the NCERT textbook, class 8th. The chapter's name is When People Rebel. Signing out for the time being. Thank you very much.